with us here. And today's topic is what is the trick of selling insurance to millennials? And I think just to start off with this topic, I just want to know what is your perspective. How is this generation of millennials and Gen Z different than the older generation? Thank you, Mugdha, for inviting me here on such a hot topic. And it's really wonderful that we are talking about this because India's majority of the population is the young population, right? Now, and also we know that insurance is not the most preferred topic for the young people anywhere in the world, and India is similar, right? So I would say when you talk about or when you ask me about this topic, I have 2 or 3 things coming to my mind. One is that obviously millennial or a young person is typically looking forward to make a career in the industry or find his or her own feet, and definitely the priorities are making a good career, doing some good exciting work, and also partying around with friends. Buying insurance is probably not the first priority. Second thing is probably from importance point of view, I think it's very important that young people also think about savings, think about their protection of the healthcare expenses, think about various kind of things they invest in, whether it's a gadget or whether it's any kind of thing, that if they are investing so much that if something happens to it, then how do they really protect themselves from unwanted expenses? Moving forward, I think I would like to know what are the main objections which this generation has, which maybe is so different from the previous one. Previous generation, if you see, previous generations first of all did not have as many distractions, right? So that's a big difference between somebody born, let's say, 22 years back and somebody born 40 years back, right? Now, coming to the point that how do they look at what kind of objections they typically have or I would say concerns about insurance. Typically, I think they would be thinking about that, if I'm earning so much, I get this much money after post-tax, I should be using that money for buying a good bike or saving for a car, or probably living in a better accommodation, or buying some more branded clothes, or going on a foreign holiday, or anywhere. Spending that hard-earned money post-tax on something which is called insurance, just to protect themselves from any unwanted or unplanned kind of expenses, I think it would be a bit of difficult for them thing for them, and I think there would be definitely a bit of concern that why should I do it? I mean, is it really necessary for me to think about it? It's the old people's job, right? I'm too young to really think about it. It's not so cool, right? Probably that. Okay, great. So I think this gives us a deeper perspective as to how the spending patterns are. So I want to know from your point of view, how do you think you can engage with this generation? Yeah, I think that's a basically topic जो हमें एड्रेस करना चाहिए कि कैसे हम इस जनरेशन से एंगेज करें, उनको एजुकेट करें कि उनको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इंश्योरेंस का क्या रोल है. और यही बात मैं अपने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स, POSP एजेंट्स और सभी को बताना चाहता हूँ अपने इस कन्वर्सेशन के थ्रू, कि जब भी हम यूथ से एंगेज करते हैं, हमें समझना चाहिए कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग क्या है. एंड इंश्योरेंस तो एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, राइट? तो नेचुरली व्हेन इंश्योरेंस एडवाइजर्स और POSPs व्हेन वो जब बात करते हैं यूथ से, उन्हें यूथ को ये सटली समझाना चाहिए कि आप जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, नेचुरली देयर आर रिस्क इनहेरेंट इन एवरीथिंग. अगर आप फुटबॉल भी खेल रहे हो तो रिस्क है, यू मे ब्रेक योर लेग. आप बाइक चला रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट हर्ट. नॉट दैट इट शुड हैपन, बट लाइफ इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड द रिस्क, राइट? तो एक साइड में जो आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपने अर्निंग चालू की है, आप चाहते हो कि आप अच्छे चीजों में पैसे को खर्च करें जिससे आपको एंजॉयमेंट मिले, जिससे आप दूसरों को कुछ गिफ्ट कर सकें या दूसरों के साथ अच्छी तरह रह सकें.
पर साथ में आप ये भी सोचना चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है आपको एजुकेट करने में, तो बहुत सारे स्टूडेंट और यूथ ऐसे भी होते हैं जिनके एक्सपेक्टेशंस उनसे हैं कि उनको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे, अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करेंगे। दूसरा ये भी है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस जो उनकी पूरी एक फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको पूरा एक ब्रेक कर सकता है। बिकॉज अगर उन्होंने प्लान नहीं किया है कि उनको कभी हॉस्पिटलाइजेशन होगा या कभी उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या उनको कोई नीड है जो सेविंग करके वो सॉल्व कर सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि फिर वो अगर नीड अराइज होगी या वो एक्सपेंसेस आएंगे तो जो भी उनके पास कैश है वो पॉसिबली उनके लिए काफ़ी नहीं होगा, और फिर इस सिचुएशन में उन्हें बोरो करना पड़ेगा किसी से हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पर, और मे बी वो शायद अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में 1-2 साल पीछे चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स उनको एक्सप्लेन करें और ये बोले कि यंग होना या यूथ होना कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए, आइडियली चांसेस कम है, बट उसके लिए फिर इंश्योरेंस के प्रीमियम्स या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी यूथ के लिए बहुत कम कॉस्ट पे अवेलेबल होती हैं कंपेयर टू पीपल जब वो एल्डरली हो जाते हैं। Okay, got it. And I also am a firm believer as a fellow millennial that obviously insurance is a need at this point. Or obviously there are so many Gen Zs and there are so many millennials who do agree कि it's an important part of a lifestyle as of now. लेकिन what do you suggest for such people who are interested in buying insurance? They do want to buy insurance, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि how to go forward with it. So what do you think कि where should these people start? कि where should they start their research from? Should they start talking to other agents in order to get market research? How should they go forward with it? Yeah, see, first of all, what I understand about Gen Z or the youth are basically they like to talk less and text more. Okay, तो जैसे आपने बोला कि whom they should talk, I think they'll prefer texting or googling or Instagramming, right? So, but yeah, that's ये भी एक तरीका है बात करने का। तो मेरा इस सोचना है कि वैसे तो आजकल के यूथ बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत एक्सपोज हैं, उनको काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ें उन्होंने लाइफ में देखी हुई हैं, बट फिर भी किसी एक्सपर्ट से, बिकॉज जब भी आप किसी नए एरिया में एक्सप्लोर करते हो, जब भी आप चाहते हो कि आप कोई नए एरिया में कुछ खरीद रहे हो, तो नेचुरल सी बात है आप बहुत सारे एरियाज में यूथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने क्लासमेट्स, अपने नोन लोगों से एडवाइस ले लेते हैं, चाहे वो उनको शॉपिंग करनी हो, चाहे उनको ट्रैवल करना हो, ऑनलाइन भी जाकर के बहुत सारी रिसर्च करते हैं। पर इंश्योरेंस थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, और इंश्योरेंस में जो मोमेंट ऑफ ट्रुथ या सच्चाई समझ में तभी आती है जब क्लेम आता है। तो इंश्योरेंस में आपने कोई भी पैसे दिए, चाहे आपने 1000 रुपये खर्च किए, 2000 रुपीज खर्च किए, जो भी किए, जब आपने ये सोच के खर्च किए कि जब क्लेम आएगा तब मुझे सपोर्ट मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी की साइड से फाइनेंशियली। बट अगर आपने उसको पॉलिसी को प्रॉपरली नहीं समझा है, और इवन दो कंपनीज आर रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर, बट कई बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट शायद आपके लिए बना ही ना हो, या उस प्रोडक्ट में जो कंडीशंस हैं वो शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको कोई और टाइप के प्रोडक्ट की फीचर्स चाहिए। तो बेटर ये होता है कि आप किसी एडवाइजर या एक्सपर्ट से सलाह लें। नाउ बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, जैसे BSE विक्स में भी हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल एडवाइजर्स हैं, या और भी जगह पे एडवाइजर्स अवेलेबल हैं जो सर्टिफाइड एडवाइजर्स होते हैं। तो मेरा इस सजेशन है कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप जरूर किसी एडवाइजर से डिस्कशन करें, समझें प्रोडक्ट को, अपने आप भी रीड करें, बट उससे आपको थोड़ा सा एक और अश्योरेंस मिल जाएगा कि आप गलत प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, क्योंकि इंश्योरेंस में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देता है। तो अगर आप गलत प्रोडक्ट शुरू से ही खरीद लेंगे तो फिर डिफिकल्ट होगा उस इन्वेस्टमेंट को आगे प्रोटेक्शन के लिए या आगे रिटर्न्स के लिए यूज करने के लिए। True. इससे पहले मैं चाय के सिलसिले में आपने मुझे चाय पे बुलाया है और आप मुझे चाय ऑफर भी नहीं कर रही है पीने के लिए। Please do have. आप क्वेश्चन पूछिए, मैं चाय से Okay, surely. So now my next question is, कि now that we understand कि where millennials stand in this, कि how should they move forward with it, what do you think is going to be a major trend when it comes to millennials and Gen Z? मुझे ऐसा लगता है कि
एक हमारे कंट्री में थोड़ा सा एक कमी है जो मैं अपने सारे एडवाइजर और पीओएसपी फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ कि जो इंडियंस हैं बाय नेचर दे आर डिजिटली वेरी सेवी। सारे आजकल आप देखो बच्चे भी 4 साल के बच्चे भी मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं, गूगल मैप दिखा रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को गाड़ी चलाते समय। बट आप फाइनेंशियल लिटरेसी से देखेंगे तो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है क्योंकि हमारे एकेडमिक सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। इसी वजह से क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं जेन जी की, मिलेनियल्स की, यूथ की, तो आई थिंक जो गोइंग फॉरवर्ड मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूथ्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज बढ़ाने की और जरूरत है। और मुझे लगता भी है कि यूथ्स अब अवेयर हो रहे हैं। एक वेव आई है जो क्रिप्टो की है, जो एनएफटीज की है, जो इन्वेस्टमेंट की है। बहुत सारा एक फैशनेबल तरीके से लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको शायद पता नहीं है कि उसमें रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या वो रेगुलेटेड है कि नहीं है। लेकिन एटलीस्ट एक चीज देख के अच्छा लग रहा है कि youths are thinking about financial products, right? They are using the mobile apps of banks. They are using various kind of tools to do transactions, UPI transactions. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस भी अभी बाइट साइज सेशन इंश्योरेंस जो आ रहा है या जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अपने बाइक के लिए इंश्योरेंस हो, कार के लिए इंश्योरेंस हो, अपने गैजेट्स के लिए हो, ट्रैवल के लिए हो, या फिर डेफिनेटली हेल्थ के लिए, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो हेल्थ एंड लाइफ शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाइक इंश्योरेंस तो लेना ही है क्योंकि आप नहीं लेंगे तो फिर आरटीओ आपको 5,000 रुपए का फाइन भी लगा सकता है, राइट? तो मुझे लगता है यूथ उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि इस पे और ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे जो एडवाइजर्स और पीओएसपीज हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो हर हफ्ते एक ऐसा एजेंडा बनाएं कि अपने आसपास के, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कस्टमर्स में जो यूथ्स हैं उनको एक वर्कशॉप करें उनके साथ में कि इंश्योरेंस की क्या जरूरत है उनको या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की क्या जरूरत है, और उससे उनको एजुकेट करें। Great. I think you've also answered my last question, but I still want to ask it. I want to know from your side 2 sentences. One is for millennials who are going to buy their first insurance, and second sentence is for the agents who are selling policies and other products to these millennials. ओके, सो मिलेनियल्स और यूथ्स को मैं कहूंगा जो फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, मैं कहूंगा कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये बेकार नहीं जाएगा। उसकी वजह 2 हैं कि गॉड फॉरबिड कभी आपको जरूरत पड़ी तो शायद यही इंश्योरेंस आपके बहुत काम आएगा। शायद यही इंश्योरेंस आपको आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी फैमिली को भी काफी सपोर्ट देगा। और अगर ये जरूरत नहीं पड़ी तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम इज नेवर डन, स्पेशली इन हेल्थ और मोटर और अदर सिचुएशंस, इन गुड सिचुएशन। सो ये तो अच्छा है कि आप इंश्योरेंस आप क्लेम ही ना करें, और आप करेंगे अगर आपको जरूरत पड़ी तो नेचुरली आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा जो आपको उस प्रॉब्लम से रिकवर करने में फायदा करेगा, राइट? नाउ मैं अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स, पीओएसपी फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगा कि जो ये यूथ है आज के, ये बेसिकली फ्यूचर है इंडिया का, और आप आज की डेट में इनसे एसोसिएट करिए, इनके लाइफ की जो जर्नी है उसके साथ में आप चलिए और इनको हेल्प करिए कि ये कैसे अपनी सेविंग्स को इम्प्रूव करें, अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को इम्प्रूव करें, और कैसे अपनी लाइफ को डी रिस्क करें, जिससे इनकी फैमिली जो बनने वाली है आगे फ्यूचर में वो भी डी रिस्क होगी और इनके पेरेंट्स भी डी रिस्क होंगे। तो मैं कहूंगा कि ये एक आपके लिए सोशल जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक सेलिंग और खरीदने और बेचने का ये एक जरिया नहीं है या एक मॉडल नहीं है। ये बेसिकली एक सोशल जिम्मेदारी है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं इंश्योरेंस लेने के लिए। और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ इंश्योरेंस बेचने में बिलीव मत करिए। अगर कभी किसी के साथ क्लेम्स आता है तो पूरा उसके साथ खड़े रहिए जुट के, बिकॉज जिसके साथ आप क्लेम्स में खड़े रहेंगे वो आपका लाइफ लॉन्ग आपके लिए कस्टमर बन जाएगा, और उस कस्टमर के रेफरेंस से आपको बहुत सारे और लोग, यूथ्स जो हैं वो आपको रिफर करेंगे। सो ये 2 आंसर मैं देना चाहता था। Thank you so much. It sounds extremely promising.